India, lack of exercises, less family ties, and overwork. So the speech does not mention the unhealthy work culture in IT companies. Yes. It does not mention that some industrialists are saying that 90 hours of work should be there. If we cannot create a healthy atmosphere for the workers, the country will ultimately not progress. Sir, the President's speech does not mention unemployment. Yes. It does not mention the large number of vacancies in railways and other government departments. Sir, the speech, if you see, is silent on pollution. Here sitting in Delhi, the President herself is affected by pollution. It is killing, it's a slow killer of our people. Now in Delhi, during this winter, air pollution AQ1 went up to 400. The President is silent on that. The electric buses have not come. Vehicular pollution has become the major source of pollution. The President is totally silent on that. The President does not mention the drug problem in the country. We have seen Urta Punjab, how drugs have affected Punjab. Now the President is silent. The NCB, the Narcotics Control Bureau, they have failed to catch those drug smugglers. Large number of our youth who are unemployed on one side, they are on the other side. There is a separate list ना, state subject, concrete कुछ बोल रहे हैं ड्रग के बारे में, यूपी के बारे में बोल रहा है। नहीं, यूपी नहीं, हमने कहा यूपी के बारे में बोले कि राज्य की सूची है कि सेंटर की सूची है, मतलब जो सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं, मतलब वट एवर यू आर मेंशनिंग दैट इज आई थिंक सो स्टेट सब्जेक्ट। सर, ड्रग स्मगल होता, पकड़ा नहीं जाता, और सबसे ज्यादा ड्रग आता है मुंद्रा पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट का मालिक कौन? अदानी। ये तो हालत है। The speaker, the president does not speak about unsettled conditions in our neighboring countries. Pakistan is unsettled, Sri Lanka is unsettled, but Bangladesh is most unsettled. There is attack on Hindus in Bangladesh. Temples are destroyed. Why? The Hindutva Prime Minister who prostrates in the Ram temple silent on the atrocities on Hindus in Bangladesh. I do not know. It is he who has to reply. Sir, the speech does not speak about monopolies. Our same family owns airports, land ports, and cement company. The President does not speak anything about removing monopolies. Sir, the same company is controlling the petroleum and petrochemical industry. The President is silent, meaning silence is encouraging them. Sir, no mention is made of the cleaning of Ganga. The Prime Minister started big that he will clean up Ganga. Now President's speech, no mention is made of that. Ganga flows by my constituency also. It's polluted, and pollution in Ganga is creating major health problems in the areas adjoining the Ganga river. The President does not speak anything on that. Sir, the President does not mention. She has spoken about Nari Shakti.
But here she has not mentioned about our Naris, our women wrestlers being molested. Shame! He remained silent about a BJP MP being accused of molesting our medal-winning women wrestlers. Shame! President Shame! hides and President does not reveal the facts. Sir, you must read the economic survey. I think it's a very good document. One of the points it makes is about mental well-being. The other point it makes is that exorbitant private college fees deny underprivileged access to medical colleges. Sir, Vande Bharat, Namo Bharat, these are good trains. It's a good effort. But has the railway minister gone once and seen the condition of passengers on the local trains in Calcutta? People ride on the trains like cattle. The president's speech. And as my friend Kalyan Banerjee mentions, the railway minister is starting new trains, but the food in Rajdhani is getting worse and worse. But yesterday, you are on the top. Yesterday he You are had made an building announcement a railway to Jammu Vande Bharat Kashmir. also, Good thing. Namo- But what about the MR. trains that are there? They are in a horrible condition. You don't get a time to take trains these days. Roof is To leaking. Dombiya, Ganj, you go by train or by car. Ministers don't Huh? go in trains. हवाई जहाज से जाते हैं. Chartered plane. अब तो कुशीनगर में ट्रेन चाहते, हवाई जहाज चाहते थे, उड़ान बोलता है. अरे उड़ान कौन चढ़ेगा? लोगों का पैसा नहीं है गांव में, और आप बोलते हैं उड़ान हम एक्सचेंज करेंगे कुशीनगर में. Kushinagar is a part of Buddhist circuit. ये From where all सब over बोगस the world रीडिंग है. pilgrims they will Sir, come. I want to say, your president suddenly mentioned that 125th anniversary of Shyama Prasad Mukherjee is being celebrated. I may mention that Shyama Prasad, I come from the area where Shyama Prasad lived. He's not worshipped in Bengal Yes. because he never went to jail during the British period. He led a ministry called Shama Haq Ministry in Bengal. So you may worship him. You may worship Savarkar, the president may. We won't worship them because they compromise with the British. And this is the basic difference between you and us. Sir, I've heard that in education we have made progress. Sir, do you know that there is not a single Indian university in the first 200 universities of the world? Shame! Not one in the first 200, Oxford, Cambridge, Harvard, MIT, like that. Chinese universities are there, Singapore universities are there, Australian universities are there. Not one university among the top universities. Huh? Kindly conclude. Sir, I'll now slowly wind up. Sir, basically, the president's government is a government which uses communalism to further its political end. Shame! It's a government which compromises with the monopoly without looking into the well-being of the people. That's why I cannot support this speech. I am told that spreading hatred. it's only spreading hatred. He is Differences. capable to speak. We cannot tolerate that. He is a I am professor. told that the Prime Minister is going to He is US. prompting you. I request him to act like not like the Mexican president. At least persuade Trump to not to increase
Indian tariff. Now kindly You know, continue. sir, Please continue. on the budget day, Yes. our stock markets did not move because they did not rise Dada, because kindly they are all continue. looking at what Trump does. Kindly With continue. this, sir, Kindly continue. I oppose the President's speech and I support my amendments. Thanks. सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो भी माननीय सदस्य अपना भाषण लिखित देना चाहते हैं वो सदन पटल पर रख सकते हैं। जो अपना भाषण में भाग नहीं लेंगे, अगर वो लिखित देना चाहते हैं तो दे कैन ले ऑन द टेबल इन रिटन स्पीच। श्री पीबी मिथुन रेड्डी जी। Very good, Dada. श्री पीबी मिथुन रेड्डी जी। Thank you, sir, for letting me talk on the motion of thanks to the President address. I would like to raise a very important issue concerning my state, Andhra Pradesh. Sir, during the partition of the state and in the AP Reorganization Act, Polavaram project has been promised to us as a national project. Originally, the project was designed at 194 TMC and it was designed to cater to 7.2 lakh acres of for irrigation and also drinking water needs. But in the recent budget speech, we have seen that the project has been, the storage has been restricted to 41.15 MDDL drawdown level, which means that the capacity of Polavaram project will reduce from 194 TMC to 115 TMC, sir. This is a big setback for our farmers, big setback for our state, and we demand that the Polavaram project should be constructed as promised by the central government, as given in the AP Reorganization Act. It should not be reduced in capacity, sir. It's a big hit. The capacity, if it is reduced to 115 TMC, it's going to cater to only 3.2 lakh acres of irrigation against 7.2 lakh acres which has been promised, sir. This is a big setback, and I really urge even the Telugudesam MPs, we are ready to work together on this, sir. The people of Andhra Pradesh will not forgive us if this is going to be implemented in the state. And we also want to know, sir, that recently the NDA government in Andhra Pradesh, or Telugudesam party, has announced that water will be diverted from Polavaram project for Banakacharla project and give water to Rayalaseema areas. How is it possible when the capacity of the project is being reduced, sir? And in the budget speech, the revised cost has also for 41.15 MDDL has been reduced to 30,496 crores, and the balance grant is only 12,157. So this is a serious setback, sir. One way there is no, the promise of special category status has gone back, and now even Polavaram project, instead of constructing it fully, now it is being reduced in size, and which reduced in capacity, which is totally against our state and interest of our people, sir. We demand that the original Polavaram project capacity should be maintained, and we are not going to budge on this. And the second important thing, sir. Sir, any government, power is not eternal, governments come and go, but the policies should remain the same, sir. For example, our former Chief Minister introduced English medium in government schools, sir. He introduced the CBSE syllabus. English medium means the government, all the government schools had a page of the same syllabus in English and one side in Telugu, sir. So earlier it was Telugu medium in all the government schools. With English medium, they had great opportunity and they could go anywhere in the world to study also, sir. And CBSE made them competitive throughout the countries. But the recent developments in our state, lot of people, there is thing that English medium is being discontinued, and also CBSE syllabus has been discontinued, sir. All these people, sir, all these people who want Telugu medium in the government schools only for poor children have all their children studying in private schools and in English medium, sir. Sir, I like my mother tongue, sir. I like my mother tongue. I have studied in English medium and I have studied Telugu also, sir. The same thing was being implemented for the poor students in our state. We demand the India government that English medium be continued, sir. There is one thing which is common for all the Indians working abroad, one thing which is common for all the Indian diaspora. It is that everybody has strength in English, everybody have learnt English. That's why they are able to go and work, sir. Imagine if a
student is studying in Telugu medium, will he get a good job abroad? Will the big MNCs pick him up? Sir, this is going to affect the future of the kids of our state, especially the poor people, and it is totally not acceptable. The NDA government should continue English medium along with Telugu, and it should not be only rubbed up on the government schools, sir. This is a very important issue, and please imagine the psychological impact which is going to have on the poor children if they are not able to be on par with all the rich kids who are studying in the private schools and other schools. Sir, one more thing. I would like to talk about one of the biggest scam which has happened in our unified Andhra Pradesh, sir. The Margadarshi chits. They have collected more than 2,600 crores against the norms of RBI, and RBI has also found fault with them. They have diverted that money to their other companies, which is against all the rules. And if anybody questioned them, they have a media house and they have targeted those people, sir. It is one of the biggest scam. It is bigger scam than Sahara. It is bigger scam than Sharda chits, all this put together, sir. But no action is being taken. Even the IT department has found fault with them. They have put a penalty of 1,000 crores for Margadarshi, and they are fighting it out in court for the past 15 years, sir. Sir, we demand inquiry be put on them. We demand that proper cases are booked and justice is done, because lakhs of people have invested their money there. And there is a complaint also that whoever has deposited that money, they are not getting it back, and they are forcibly making them renovate, sir. Just because they have a big media house, just because they target anybody talking on this, law should be same for everybody, sir. It is surprising. A case study can be made on this, sir. How they can evade judiciary, how they can evade police. Sir, when somebody is buying watches, ED is calling them. When somebody is acting in an ad, ED is calling them. Serious fraud offences are calling them. Why is it that thousands of crores is siphoned off and no ED or no serious fraud offences are calling them? This itself is a case study for a major scam, and we demand that the Prime Minister take note of this and take serious action on this, sir. Sir, one more thing. We want the government to clearly state, are you going to privatize Visakhapatnam steel plant or not? Sir, we demand that Visakhapatnam steel plant should not be privatized. You have given money for running the plant, that is good, but we strongly oppose any attempt to privatize Visakhapatnam steel plant. And we also demand that part of AP reorganization at Kadapa steel plant was promised. Our former Chief Minister spoke to the Jindal Group. They came and inaugurated it. We want the India government to talk to them and expedite the process of setting up this steel plant. And sir, and one more important thing, our Dada also spoke of this. Sir, drugs has become a serious menace in the country. One way we are talking of controlling drugs, sir, I demand that all the schools and colleges, a testing has to be done, sir, because it's unlike alcohol. Parents are unable to find out whether their children are under the influence of drugs, and by the time they find out, it is too late. So we demand that the government brings out a mechanism where all the students are screened, and in case anybody is found under the influence of drugs, they should be counseled, they should be brought back into the system. The whole future of the country is at stake because of these drugs. We demand that a serious action be taken on this, and thank you very much for giving me this opportunity. Mike. You start, mic will be automatically. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. आपने मुझे इस महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया. मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए संपूर्ण भारत के नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. महोदय, 75 वर्ष के गणतंत्र में हमारे देश की खूबसूरती यह रही है कि हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया. अभी कल मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का, आज भी एक सपा के नेता का, सबका भाषण सुन रहा था. सभी बात कर रहे थे
पिछड़ों के, अनुसूचित जाति के, दलितों के, अनुसूचित जनजाति की, महिलाओं की। देखिए अध्यक्ष महोदय, इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती और संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि भारत के पूर्वी तट की एक लिपिक आदिवासी महिला आज इस देश की राष्ट्रपति है और भारत के पश्चिम तट का एक चाय बेचने वाले का अति पिछड़ा का बेटा आज प्रधानमंत्री है और यह केवल और केवल संविधान के कारण ही संभव हो सका है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के जो भी स्पीच होते हैं वह एक तरह से सरकार के किए गए कार्य और किए जाने वाले कार्यों का दस्तावेज होता है। वह बताती है कि सरकार क्या करेगी। आज किसी ने भी जो सरकार के कार्य हैं उन पर टिप्पणी हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं कर सके। उन्होंने खुद माना कि 50 से 100 योजनाएं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है। तो मैं उनका इस बात के लिए तो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुद माना कि 100 नई विकास की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने कोई कमी राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं देख सका तो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति पर उनके और उनके परिवार ने व्यक्तिगत टिप्पणी की है जो बहुत ही अशोभनीय है और पूरे सदन को उनकी निंदा करनी चाहिए। किसी को भी महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वैसे ही उन्होंने अपने भाषण में सेना के बारे में बोल के गुमराह किया। मुझे उम्मीद है कि इनके तरफ से जवाब आना चाहिए कि और वो टेबल करें। कल बात माननीय निशिकांत जी ने जो रखी थी, ये टेबल करें कि इसके बारे में सबूत क्या। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। और एक कल उन्होंने एक और बात कही कि तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई है। सभापति महोदय, अगर तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई है और बहुत पिछड़े उनको मिले हैं, अनुसूचित जाति मिली है, तो क्यों नहीं वो एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाते हैं? क्यों आज भी सवर्ण वहां पे मुख्यमंत्री है? क्यों आज भी तेलंगाना में 80% सवर्ण मंत्री हैं? इसका भी जवाब इन लोगों को देना चाहिए। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वो जब गए, बिहार गए थे अभी 15 दिन पहले मुझसे पूछा गया कि भाई नेता प्रतिपक्ष बिहार आ रहे हैं, तो मैंने यही कहा था कि भाई वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हमारा प्रचार करके जाएंगे। और उन्होंने जो वहां भाषण दिया तो कहा कि बिहार की जातीय जनगणना बिल्कुल फेक है। अब ये उनके कांग्रेस के मंत्री उस समय सरकार में थे, राष्ट्रीय जनता दल का नेता उस समय उप मुख्यमंत्री था। तो अगर यह फेक है तो उनके कहने का तात्पर्य यही था कि कांग्रेस और राजद जहां भी रहती है वह घोटाले ही करती है और इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना को फेक बताया। लेकिन वो भूल गए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जी के रहते कोई घोटाला नहीं हो सकता। इनके 1.5 साल के घोटालों से ही त्रस्त होकर माननीय मुख्यमंत्री पुनः एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन इनको अवश्य बताना चाहिए कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और राजद के मंत्री किस तरह से जातीय जनगणना को फेक या घोटाले वो कर रहे थे, यह जरूर बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से यह कोई नई बात नहीं है। इनके द्वारा हमेशा एक तरह का गलत प्रचार, दुष्प्रचार, संविधान को रोकने की कोशिश, अनुसूचित जाति को रोकने की कोशिश सदैव से कांग्रेस के द्वारा हुई है। इनके परनाना जब माननीय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो संविधान के रचयिता थे बाबा साहेब, उनको भी इस संविधान में संविधान की शपथ लेने इस संसद में आने नहीं दिया। हर बार षड्यंत्र करके उनको सदन में रोका गया कि बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान से खुद बाबा साहब शपथ नहीं ले सके। इसकी पूरी साजिश इन लोगों ने किया था। इतना ही नहीं, कोई बात नहीं है सभापति महोदय, इतना ही नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार इस देश के राष्ट्रपति रहे। लेकिन उनको, क्योंकि उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था, तो जब उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा तो उनको सदाकत आश्रम के 2 टूटे फूटे कमरे में रख दिया गया। और आज भी जब नेता प्रतिपक्ष सदाकत आश्रम गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द का भी प्रयोग उन्होंने पटना में नहीं किया। और ये केवल दूसरों के लिए नहीं है, इनके अपने बुजुर्गों के लिए भी यही हाल है। मैं बताना चाहूंगा कि जो माननीय पूर्व सांसद थे फिरोज जहांगीर घंडी जी, जिन्होंने बाद में अपना नाम फिरोज गांधी रख लिया था, पर उनका ओरिजिनल नाम फिरोज जहांगीर घंडी ही था। उनको भी उचित सम्मान कभी कांग्रेस ने नहीं दिया।
क्योंकि उन्होंने नेहरू जी के समय में मुद्रा घोटाले का ये किया था, निकाला था। और ये कोई पसंद नहीं है कि मुद्रा घोटाले के निकलने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी की बदनामी हुई थी, इसलिए आज तक फिरोज जहांगीर घंडी जी को कोई सम्मान नहीं मिला। यह अलग बात है कि उन्होंने जो नाम अपना फिरोज गांधी रख लिया, तो आज भी परिवार का सदस्य किसी भी से भी शादी करे अपना टाइटल गांधी ही लगाता है। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, धनुष उठा लेने से कोई श्री राम नहीं बन जाता, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं बन जाता, बाल बढ़ाने से कोई कलाम नहीं बन जाता, और गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाता। और महान बनने के लिए महात्मा गांधी जी जैसे और नरेंद्र मोदी जी जैसे कर्म करने पड़ते हैं। आज यह माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। यह उनकी सोच थी कि कैसे हम आगे बढ़ें। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश का शासन छोड़ा तो भारत 11वें पायदान पे था, लेकिन जब 10 साल बाद कांग्रेस ने शासन छोड़ा तो भी भारत 11वें पायदान पे था, एक पायदान की भी तरक्की नहीं कर सके। लेकिन यह प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, क्योंकि इनका तो एक ही काम था, 3 साल किसी तरह घोटाले करो, चौथा साल कुछ लोक कल्याणकारी योजना लाओ, 5वां साल को मुफ्त में बांट दो और सरकार जीत के फिर 3 साल घोटाले करो। इससे ज्यादा कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं है। आज 3 करोड़ परिवारों को नया घर, 2 करोड़ 25 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड, 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना जैसे कार्य करके प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक नागरिक को एक सम्मानपूर्वक जीवन दिया है। हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में आपदा की सरकार होने से जरूर दिक्कत है, लेकिन मैं पूरा विश्वास दिल्ली के नागरिकों को दिलाता हूं कि 8 फरवरी को दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और हर गरीब के, दिल्ली के भी हर गरीब के मकान के सपने को सच होगा। क्योंकि यह मोदी जी हैं कि वह कहते हैं कि हम वादे नहीं हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए देश की जनता सदैव मोदी को चुनती है। आज से 7 वर्ष पहले जिनेवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में एक सांसद की हैसियत से मुझे पूरे जनरल असेंबली में बोलने का मौका मिला था, और वह मौका सिर्फ इसलिए मिला था कि पूरे दुनिया भर के सांसद इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि जीडीपी में जिसकी इतना कम, प्रति व्यक्ति आमदनी में जो देश इतना कम है, वह कैसे 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से मुफ्त चिकित्सा का लाभ दे रहा है। और हर सांसद ने पूरा का पूरा ध्यान से सुना कि कैसे इसको अच्छे से आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। आज तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ देके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुजुर्गों के स्वाभिमान को संरक्षित करने का काम किया है। भारत में अनेक बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों को अपनी बीमारी इसलिए नहीं बताते थे कि हम इस उम्र में अपने बच्चों पर भार नहीं दें, और मोदी जी ने साफ संदेश दिया कि आप अपने इलाज की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अपना इलाज करवाइए। आपके लिए आपके परिवार का एक सदस्य नरेंद्र मोदी सदैव तैयार है आपके सारे बीमारियों की चिंता करने के लिए। आज जन औषधि केंद्र के माध्यम से 80% रियायत में दवाइयां मिल रही हैं, और इस देश की जनता का 30,000 करोड़ रुपया केवल इलाज में बचने का काम किया। जहां तक महिलाओं की बात करें तो नारी वंदन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, और केवल लक्ष्य नहीं रखा, अभी तक हम 1 करोड़ 15 लाख बहनों को लखपति दीदी बना भी चुके हैं। आज हमारी बहनें चाहे निचले स्तर पर बकरी मुर्गी पालन से लेकर के लड़ाकू विमान चलाने तक का कार्य इस देश की हमारी बहनें कर रही हैं। और कोई ऐसा एनडीए जैसे जगह पे जो पहले महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी, वह भी खोलने का काम, उसके भी दरवाजे खोलने का काम माननीय मोदी जी ने किया। आज युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में जो केंद्र सरकार के सहयोग से ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है, इसके कारण हमारे नए युवाओं को न केवल उद्योगों में काम करने का अवसर मिलेगा, बल्कि ये युवा तैयार होकर पूरे विश्व के उद्योगों में छा जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, और उसमें से भी 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप में 117 स्टार्टअप
यूनिकॉर्न बन चुके हैं, अर्थात उनकी कुल पूंजी 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जो शून्य से शुरू करके 8,500 करोड़ का अगर सफल हो पाया है तो यह केवल और केवल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं की देन है। उसी प्रकार यूनिफाइड पेंशन के माध्यम से सभी कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन, 8वें वेतन आयोग का गठन, घर के लिए ऋण सब्सिडी, एमएसएमई की गारंटी सीमा को 2.5 गुना बढ़ाना, मुद्रा योजना को 10 से 20 लाख करना, पीएम स्वनिधि योजना जैसे अनेक योजनाएं चलाकर हर नागरिक को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी के शासनकाल में आज हमारे अखिलेश जी भी बोल रहे थे कि मेट्रो की लंबाई दुगुनी हो चुकी है, वो अभी मानते हैं और यह पूरी दुनिया मानती है कि आज यह 10 साल से मोदी जी के कार्यों का नतीजा है कि मेट्रो में हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े मेट्रो लाइन नेटवर्क में सबसे तीसरे बड़े देश हो चुके हैं। हम लोगों ने आज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब बनाया, 76,000 करोड़ से डीप वाटर मेगा पोर्ट हम बना रहे हैं, वरना श्रीलंका के पास से सामान आता था और फिर वह जहाज के माध्यम से भारत आता था बड़े जहाजों के लिए। आज भारत की विमान कंपनियां 1700 नए विमानों को ऑर्डर दी हैं। हमने हवाई अड्डों की संख्या न केवल दुगुना किया बल्कि अब हम 120 नए और एयरपोर्ट उड़ान के साथ लेने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की योजनाएं हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहा है, जिन्होंने जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद तक सभी राज्यों का भारत में विलय कराने का कार्य किया था। यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी 125वीं जयंती मना रहा है। नेहरू जी के कारण कश्मीर समस्या को रोक दिया गया था और कश्मीर समस्या जो नासूर बन के थी उसी के कारण हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ। लेकिन धारा 370 को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये संसद का एक टीम होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राइड, उसके तहत मैं जम्मू कश्मीर असेंबली के नए चुने हुए विधायकों को संबोधित करने गया था। पूरे विधानसभा में जब हम लोगों ने अपनी बात रखी उसके बाद प्रश्नोत्तर काल शुरू हुआ, एक भी विधायक ने यह नहीं पूछा कि धारा 370 क्यों खत्म किया गया। सबका एक ही प्रश्न था कि आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं। तो ये मोदी जी की सोच का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में भी किसी विधायक ने 370 के बारे में एक प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी वहां जाकर 370 रट रही थी और उसी का नतीजा हुआ कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल समाप्त वहां की जनता ने कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का चरित्र कैसा होना चाहिए इसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। जब नरसिम्हा राव जी के सरकार को संकट आया तो यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार के गुणगान करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। हम लोग खुद 2009 में इसी सदन के सदस्य थे। अगर हम लोगों ने भी बहुत बार डिसरप्शन किया, हम लोगों ने भी बहुत बार वेल में आए, लेकिन अगर वेल में भाजपा का एक सदस्य अगर आधी रेखा पार करता था तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सीधे हम सबको बैठा देती थी कि तुम ट्रेजरी बेंच की तरफ, तुम सांसद होकर ट्रेजरी बेंच की तरफ कैसे चले गए। आज तो नेता प्रतिपक्ष को कुछ समझ में आता है, जो नेता प्रतिपक्ष को समझ में नहीं आएगा तो सांसदों को यह गरिमा नहीं समझ में आती है कि जो भी वेल में शोर भी करना तो अपने साइड करें, ट्रेजरी बेंच साइड आना एक बहुत ही गलत काम है। तो आज सही अर्थों में नेता प्रतिपक्ष ने, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने उन सभी नेता प्रतिपक्ष जो पहले रहे उन सभी को, श्रेष्ठ आत्माओं को शर्मिंदा करने का काम किया है और इसके लिए राहुल गांधी जी को इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने संयुक्त सत्र को संबोधित किया। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। परमादरणीय चेयरमैन साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों में हमारे बहुत ही नेक, ईमानदार अर्थशास्त्री, एजुकेशनिस्ट, हमारे माननीय साबका प्रधानमंत्री सरदार बहादुर सरदार मनमोहन सिंह जी हमें छोड़कर चले गए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री रहकर नेक नीति से, ईमानदारी से देश को चलाया। उनके राज्य में कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, किसी को डर नहीं था और वो एक सच्चे सुच्चे ईमानदार नेता थे। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। उनका हक बनता है, सरकार को पहले ही ये कर देना चाहिए था और उनका एक स्थल तैयार किया जाए, जैसे दूसरे प्रधानमंत्रियों को चाहे उसमें भी सरकार ने गलत किया। जब उनका संस्कार हुआ, मैं उस बात पे नहीं आता, लेकिन जो उनका हक बनता है उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि जो हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली जो सरकार है, वो हिंदुओं के महाकुंभ को भी सुरक्षित नहीं रख पाई, वहां सही प्रावधान नहीं कर पाई, वहां सही इंतजाम नहीं कर पाई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों श्रद्धालु वहां मारे गए। सो मैं सरकार से, बल्कि यहां जिस दिन सबको श्रद्धांजलि दी गई, उस दिन उन श्रद्धालुओं को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई, बाद में दी होगी। लेकिन मैं आपको बेनती करता हूं कि सरकार की गलती से सब कुछ हुआ है। सरकार को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगनी चाहिए कि हम वहां ये इंतजाम नहीं कर पाए। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं कुछ पंजाब और जलंधर के अपने कंस्टिट्यूएंसी के मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, गुरु रविदास जी की जयंती आ रही है। हर साल जयंती के ऊपर जलंधर से ट्रेन वाराणसी तक जाती हैं और सरकार उसकी प्रावधान करती। मैं सरकार से बेनती करूंगा कि 3 ट्रेनें जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाएं ताकि वहां वो जा सके श्रद्धांजलि। और जलंधर में कैंट के चारों तरफ एक रिंग रोड बननी है, वो मैं रक्षा मंत्री जी से बेनती करूंगा कि मैंने लिखकर भेजा है, आप उस पर गौर करें। सर, 2000 में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया साबका चीफ जस्टिस चालिया जी की रहनुमाई में कि वो जो हमारा संविधान है इसमें क्या क्या तरमीमें होनी है उसको बताएंगे। तो उसमें एक रिपोर्ट ये भी है कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनको हिंदुओं के साथ अलग आइडेंटिटी माना जाए, ये सेपरेट आइडेंटिटी है। और आर्टिकल 25(2) में तरमीम करके हिंदुओं के साथ सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी लिखा जाए। तो मैं सरकार से बेनती करूंगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर यह तरमीम लेके आई जाए। सीएम साहब, चेयरमैन साहब, कल राहुल गांधी जी बोले और कल देश ने देखा कि देश ने कल राहुल गांधी जी में एक ट्रू स्टेट्समैन को देखा है। और उनका जो कल का भाषण, कल मुझे एक बीजेपी के मंत्री मिले, वो बोले हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास मस्जिद और मंदिर के झगड़े का जवाब है। लेकिन अगर आप किसी मंत्री का नाम लेंगे तब वो मैंने नाम लिया नहीं सर, मैंने नाम लिया नहीं। तो फिर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है सर, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं। जवाब दे सकता है क्या मैं उसको मंत्री पद से हटा दूं? नहीं, गौरव जी, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं कि उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन जवाब वही दे सकता है जब किसी का आप नाम लेंगे। तो सर क्यों मेरा इससे भ्रम भी तो पैदा हो सकता है, भ्रम भी पैदा होगा। सर, राहुल गांधी पे 40 केस हैं आज इस सरकार ने डाले हुए, उसको तराशा जा रहा है, वो हीरा है और तराश हो रहा है। और सरकार हर बार, अब पार्लियामेंट में भी केस कर दिया, जहां जाते हैं वहां की सरकार से केस करवा दिया जाता है।
लेकिन राहुल गांधी ने कल बताया कि उसकी सोच देश को आगे ले जाने की है और ये देश को हर समय पीछे लेकर जा रहे। बिना शिक्षा एजुकेशन कोई देश कोई घर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश की जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, जो सेंट्रल सरकार चलाती है, उसमें 25 से 30% हर यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है। पढ़ाई कैसे होगी? आज ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे और अब कह रहे हैं कि 2 लाख आएंगी। 10 साल में किसी नौजवान को नौकरी नहीं दी। सर, महंगाई का ये हाल है कि चूल्हा चलाने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है और इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी झेल नहीं सकता। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। माननीय चेयरमैन साहब, पिछले सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अंबेडकर 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 करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। सर, आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से। क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अंबेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अंबेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज ने नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अंबेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अम्बेडकर को जानते हो। 115 चेयरमैन सर, किसी का भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य बृजलाल जी के नेतृत्व में गई और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करें। सर, मैं यह बात ही कर रहा हूं। आज तक माफी नहीं मांगा। सर, मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए, हर वर्ग को, किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण वर्त में बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना। वादा कर गए हैं, वो 5वें रोज का किसी से सुन लिया होगा, दुनिया 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा। ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर, हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया।
सर अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहां देना है कुछ 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या, बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर कितने मिले बिहार को? सर आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकालकर, कितने मिले बिहार को। तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने के? जब और आज फिर, आज आप तो यही कह रहे हैं ना, बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं। फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। काइंडली कंक्लूड। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। अरे आपका 12 मिनट हो चुका। सर मेरी बात सुनो। अब ये आरएसएस की हर समय बात स्पीकर भी बोलने वाले हैं आपके यहाँ। सर ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। स्पीकर एंड योर टाइम इज लिमिटेड, ऑलरेडी यू हैव टेकन 12 मिनट्स। सर बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए। सर जितना मैं बोला हूं उससे ज्यादा तो आप बोलिए हैं, बोलने तो दो सर। सर बोलने दोगे कि नहीं मुझे? अब जब भी मैं बोलता हूं आप जैसे महानुभाव को यहां लगा दिया जाता है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। आप तो मेरे वेल विशर हो ये कह रहे हैं। ये नहीं करेंगे। अरे अब वो खड़े हो गए हैं। अरे गांव तो बसने दो, तभी मांगते आएंगे ना यार। अभी पानी आया नहीं, मौजे खोल भी लिए आपने, बोलने तो दो मुझे। सर नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूं, कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते ही उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात? बोले। और फिर 1966 में, 1980 में आरएसएस के लिए यह कहा गया कि आरएसएस और जमाते इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में, 4 जुलाई 24 में, बोलने दो सर, बोलने दो आप। अब बोलने दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, अतीत की बात कर रहे हैं, कोई पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे। सर अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, 62 के चाइना युद्ध के बाद 1963 में इंडिया गेट पर परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने शामिल कराया। ये नेहरू जी को गाली दें, ये नेहरू जी के नीतियों को गाली दें। आरएसएस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था। आप माफी मांगिए देश से कि नेहरू ने गलती की। ये आरएसएस शामिल हुआ है, सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है सर के जानकारी दे रहे हैं। आरएसएस को जानकारी दिया। सर बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप कंक्लूड करिए ना। आरएसएस का मेरे पास नोटिफिकेशन है कि आरएसएस को कहा गया था कि आप कभी भी राष्ट्रपति का सरकारी कर्मचारियों को अभिभाषण होता है, सरकार पे बोलिए सर। पंजाब अब ये अब वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी सर।
अब आप कह रहे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। ला, आप बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया। सर अभी 24 में आरएसएस को यह किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। But there are other speakers also from your party. How? So there is a time. Already he has taken for 15 minutes. He was giving only. सर 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने ये कर दिया है कि आरएसएस का कोई भी अफसर देश का कोई भी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर बन सकता है, जो पहले नोटिस। आपकी बात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर। श्री पप्पू यादव जी, श्री पप्पू यादव जी। सर मुझे और स्पीकर नहीं बोल पाएंगे। आपका समय जो है, अगर इनको बोलने नहीं तो फिर और आगे के जो स्पीकर आपके नहीं बोल पाएंगे। देयर आर नंबर ऑफ, आई थिंक आप 1 मिनट मुझे अपनी बात कंक्लूड करिए। मुझे 2 मिनट दो। नहीं, अच्छा चलिए 1 मिनट। हेलो, आप 1 मिनट पे आ गए। सर पिछली बार यहाँ एक मेंबर साहब बोल रहे थे, जिनको इस बार मंत्री ने बनाया, कौन है वो, ठाकुर साहब, तो वो उन्होंने महाभारत छेड़ ली। मुझे सचमुच लगा जैसे धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन खड़ा होकर बोल रहा। सर उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की ओर उठाया। सर ये करोगे आप? ये चलेगा? ये देश में होगा? बहुत धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी, श्री पप्पू यादव जी हो गए। श्री पप्पू देश में नफरत फैलाने का काम आज ये लोग कर रहे हैं, और देश की अखंड एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा है। आज तक हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ 70 साल में, जब से ये सरकार आई है। धन्यवाद श्री पप्पू यादव जी, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आभार प्रकट करता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हूं। एक कहावत है हम लोग के बिहार में, सूप बाजत बाजत चलनियो बाजत, भाग गए वो। और हमाम में सब नंगे, हट डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम बोलेंगे नहीं, वो चले गए। तो इन लोगों को हम इतना से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं ये, क्या क्या करते हैं झारखंड में, और कहां इनका ननिहाल खानदान, सब हमको बोलना नहीं चाहिए। महोदय, हम शुरू करते हैं, बार बार चर्चा होती है बिहार की। प्रधानमंत्री जब से आए, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने कमला नगर में बोला कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते थे, और जमुना का पानी हम पीते हैं डेली। आप रिकॉर्ड उठा के परसों के स्पीच का सुनिए कि हम जमुना का पानी पीते हैं, हम कमला नगर में ही रहते थे। प्रधानमंत्री जी हमारे कहां कहां रहते थे, कहां नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई कि गुजरात, जो गांधी और पटेल के गुजरात, जो मोहब्बत की नगरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम और मानवता के लिए जो प्रतीक थे, आज वो गुजरात गांधी से हटा करके, पटेल से हटाकर उनको नाथूराम गोडसे और नए गुजरात की परिभाषा से परिभाषित की गई, शुरुआत किया गया। और जब आए तो उन्होंने काला धन, जाली नोट, 15 लाख रुपया से शुरू की, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी, आप उठा करके देख लें, एक भी वादे पर दोबारा इतना
प्रधानमंत्री की नोटबंदी सबसे अहम घोषणा थी। आज तक दोबारा चर्चा इस सदन में नहीं हुई कि नोटबंदी से किनको बेनिफिट मिला, किनको नहीं मिला, नोटबंदी से देश और किसान और महिलाओं की कितनी क्षति हुई, व्यापारियों की कितनी क्षति हुई और मजदूरों के हालात क्या हुए। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी को आप उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति के जेब से पेन, कलम, दवात, पेंसिल, चाय पत्ती, नमक, तेल, सब्जी, दाल, साड़ी, चप्पल, सब चीज पर 3 गुना जीएसटी। ये पैसा मिडिल क्लास के नीचे से लिया जा रहा है। पूरे देश में मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं बचे, ना तो नोटबंदी के बाद और ना इतने करे जीएसटी लागू होने के बाद। तो नोटबंदी और जीएसटी को आधार कहा, लोग कहते हैं हंडी के एक चावल से पता चलती है कि चावल पक गए। अब प्रधानमंत्री जी तिबारा आ गए, 3 बार देश के लोगों ने इन्हें बनाया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी जो कुंभ की बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चल भैया, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले जाएं, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड यंग, वो साधु संतों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, मैं दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है, इन पर क्या इंक्वायरी होगी? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, मैं इस जानकारी का आधार देंगे या आप ये कह देंगे आधार ही के रूप में मैं 300 और 600 पर गए? हुजूर, मैं क्या कहता तो आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है, मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। दूसरी बात, महोदय राष्ट्रपति भाषण में रोजगार की, नौकरी की, बीपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, नीट का, जो लगातार हमारे नेता राहुल गांधी इस सवाल को लेकर बोलते रहे। बीपीएससी में हमारे बिहार के बच्चों को मारा गया, लगातार धरना पे हैं, हम कोर्ट गए, लगभग पेपर क्वेश्चन लीक आउट होता है इस देश में। क्या कभी किसी पेपर, क्या कभी मिडिल क्लास या ओबीसी या ईबीसी का बेटा अब कभी नौकरी कर पाएगा? 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, लगभग अग्निवीर हो गया। और इतना ही नहीं, नियोजित और संविदा की खेती होगी, परमानेंट नौकरी अब नहीं मिलेगा, नौकरी लगभग प्राइवेट की ओर चला गया। तो प्राइवेट में तो अध्यक्ष जी आरक्षण है नहीं, तो ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी का बच्चा तो गया। आपने तो हमला कर दिया आरक्षण पर, 67% आरक्षण नहीं देंगे। अब जाति जनगणना की बात बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं कुछ और नहीं कहूंगा,
मैं सिर्फ इतना कहूंगा बिहार के बारे में कि जब बिहार की चर्चा होती है, जब ये लोग करते हैं, अभी मैं आपको एक ऐसा चीज दूंगा अध्यक्ष महोदय, एट्रल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी, ये निजी कंपनी में सहारा इंडिया भी आता था। सहारा इंडिया लगभग 3 करोड़ लोगों का पैसा अभी झारखंड, आप तो किसी भी स्टेट के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। आप तेलंगाना देखिए, बेंगलोर देखिए, झारखंड देखिए, झारखंड का आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं। झारखंड की बंद पड़ी फैक्ट्रियों का आपके रीजन में बंद हुआ। झारखंड में झारखंड की इकोनॉमी की स्थिति क्या है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप बंगाल पे भी चर्चा नहीं करते हैं। बिहार की जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है। तो जो लोग ये बात उठाते हैं, मेरा कहना क्या है अध्यक्ष महोदय कि एजुकेशन पर कितना बजट, आप देखेंगे कि मेरे पास महोदय 2014 में 7.4, 2024 घट के हो गया 6.4, 19 में 2020-21 में 6.6 की गिरावट आ गई आर्थिक विकास दर में। महंगाई की स्थिति आप देख लीजिए सर, ये कहते हैं ना लगभग 84 से 86 करोड़ को आप कौन सा चावल दे रहे हैं आजादी के बाद, कौन सा 84 करोड़ 5 लाख चावल पर यह देश पैदा हुआ है। हम 140 में 84 करोड़ जीडीपी की बात करने वाला है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मेरे रुपये की गिरावट कितनी है, मेरी वैल्यू कितनी है, कृपया और पर कैपिटा इनकम सर वही हम आपसे 9 मिनट हो गया। 9 मिनट। सर मैं बिहार के बारे में कहा कि बंद करता हूं जब आप कह रहे हैं तो मेरा कहना आपसे ये है, अभी तक भी तो आप बिहार मेरा कहना यह है कि आप की जो विदेश नीति है, अभी बांग्लादेश, सर वही आ रहा हूं सर, बांग्लादेश गए थे आईएसआई के चीफ, 3 दिन वहां रहे। भूटान की आधी सरकार चीन में थी। हमारे प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं। नेपाल के बॉर्डर पर पूरा का पूरा चीन का एयरपोर्ट बन गया, पूरा। सर पोखरा में जाके देखिए, वहां के सैनिक चैन की उतरते हैं। सर एएसआई के एजेंट क्या कर रहा था? सर भूटान के मंत्री चीन में आज 15 दिनों से क्या करते हैं? बांग्लादेश दुश्मन, नेपाल दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, वियतनाम दुश्मन, वियतनाम चला गया, ताइवान चला गया, चीन हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चीन। अब कंक्लूड सर कंक्लूड कर, हम सर बिहार के बारे में सिर्फ आएंगे। सर मेरा आग्रह है 2 मिनट सर, 1 मिनट कि बिहार में क्या मिला? सर हम भीख मांगा क्या गया नहीं बिहार के द्वारा, क्या नहीं मिला? सर मेरी बात सुनिए ना, विशेष राज नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला। बंद पड़े फैक्ट्री, डालमिया नगर से शुरू करता हूं, चीनी मिल, पेपर मिल, दालचीनी मिल, सिल्क मिल, बंदूक फैक्ट्री आप उठाइए, आप उठा करके देखिए, सिल्क मिल, जूट मिल। सर मेरे यहां बनमनखी में चीनी मिल बंद हो गया। जब फैक्ट्रियां नहीं रहेगी, जब फूड प्रोसेसिंग पर हम फैक्ट्रियां नहीं देंगे, जब हम मछली उत्पादन को फैक्ट्रियां, बार बार चर्चा होती है। सर मैं बात को खत्म कर रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं। सर मैंने अपने क्षेत्र में मैंने कहा कि हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश नेपाल, इस इलाके में एक एम्स मैंने पूर्णिया के लिए मैंने डिमांड किया। मैं सभी जगह सब स्टेट में 2-3 हाईकोर्ट बेंच है, लेकिन मैंने आग्रह किया कि हाईकोर्ट बेंच हमको कम से कम पूर्णिया में। सर 1 मिनट करेंगे सर, एक मिनट हमने मांगा हमको हाईकोर्ट बेंच दिया जाए। सर हाईकोर्ट बेंच अभी तक आपकी बात। सर एक मिनट हमने आईटीआई आईआईटी की बात हमने की सर पूर्णिया के लिए। सर 1 मिनट, हम पूर्णिया में आप कहते हैं मखान बोर्ड, मैं कहता हूं सर दुनिया का 94% कोशिश सीमांचल मिथिलांचल में होता है, तो बोर्ड गठन से नहीं होगा सर, हमारी प्रोडक्ट से हमारा सर उत्पादन की बात मैं कर रहा हूं सर हाफ मिनट मिला, हाफ मिनट सर मैं मक्का और मखान और दूध की प्रोसेसिंग पर मैं आपसे सिर्फ आग्रह करूंगा। हमारा इलाका सबसे गरीब है, सबसे ज्यादा पलायन है। सर मैं एक डिमांड करता हूं आपके द्वारा कि हमें पूर्वांचल के लिए
एक मंत्रालय का यहां से गठन हो जो हमारे पूर्वांचल का विकास नियमित हो। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आते हैं, वो बहुत परेशान हैं। मेरा आग्रह है कि पूर्वांचल मंत्रिमंडल का गठन हो और वहां से विकास हो। धन्यवाद। श्री के सुब्रमण्यन जी। ஸ்பீக்கர் சார், குடியரசுத் தலைவரின் உரை என்பது இந்த அரசாங்கம் உலக அரங்கிலும் உள்நாட்டிலும் நிலவுகிற சிக்கலான பிரச்சனைகளில் என்ன கொள்கை நிலையை மேற்கொள்கிறது என்பதை பற்றிய ஒரு தொகுப்பான ஆவணம்தான் குடியரசுத் தலைவர் உரை என்பது. அந்த கண்ணோட்டத்தோடு பார்த்தால் உலக அளவில் ஜவஹர்லால் நேரு காலத்திலிருந்து கட்டப்பட்டு வந்த நடுநிலை கொள்கை என்பது முற்றாக கைவிடப்பட்டிருக்கிறது. அமெரிக்காவினுடைய தொங்கு சதையாக இந்தியாவை மாற்றி இருக்கிறது இந்த ஆட்சியாளர்களால். இஸ்ரேல் இனப்படுகொலையால் ஒரு இனத்தை குறிவைத்து கொன்று அழிக்கின்ற முயற்சியில் ஈடுபட்ட இஸ்ரேல் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய நெருங்கிய நட்பு நாடு. உலகில் பல நாடுகளை தன்னுடைய மாநிலமாக சேர்த்துக் கொள்ளுவேன் என்று சொல்லுகிற ட்ரம்ப் இவருக்கு நெருக்கமான கட்டிப்பிடிக்கிற நண்பர். இந்த நிலைமையில் உலக அளவில் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பக்கம் இந்தியா நிற்கவில்லை. ஆக்கிரமிப்பாளர்களோடு இந்தியா நிற்கிறது. இது இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தை இழிவுபடுத்துவதாகும். கடந்த காலத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்ட கொள்கை நிலைக்கு நேர் எதிரானதாகும். எனவே இதை நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். அயல்துறை கொள்கை என்பது இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தையே சிதைக்கிறது, சீரழிக்கிறது, ஏகாதிபத்திய கைக்கூலியாக இந்தியாவை மாற்ற முயற்சிக்கிறது. எனவே இது ஏற்கத்தக்கதல்ல. அடுத்து உள்நாட்டு நிலைமையை பொறுத்தவரையிலும் சொன்னால் இவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறார்கள் ஆட்சியாளர்கள், நாம் இப்பொழுது மூன்றாவது பொருளாதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கிறார்கள். 2027க்குள் 5வது பொருளாதாரமாக வளர்ந்து விடுவோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். இது உண்மை அல்ல என்பதை இந்தியாவின் சித்திரம் தெளிவாக காட்டுகிறது. இந்தியாவினுடைய இன்றைய நிலைமை என்ன? 13,40,00,000 பேர் தினசரி 170 ரூபாயில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு புள்ளி விவரம் கூறுகிறது. அதேபோல 116,20,00,000 பேர் வெறும் 850 ரூபாயில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வருமானமே அவ்வளவுதான். ஏறத்தாழ இந்தியாவின் 84% மக்கள் இந்த 850 ரூபாய்க்குள் தான் வருமானம் பெறுகிறார்கள் என்றால் நாங்கள் வளர்ச்சி நிலையிலே இருக்கிறோம் என்று சொல்லுவது அப்பட்டமான ஏமாற்று நாடகம் என்று நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன்.